Welcome back and thanks for the patience. And let's get into the webinar in detail. So, firstly, before entering towards the webinar, let me introduce Raj Lakshmi Solutions Private Limited, what the organization is all about, and what are the different activities they exactly do for the market. So, the first and the most important thing is like Raj Lakshmi Solutions Private Limited is part of multiple softwares and services. So let's get into in detail about the softwares. We are part of Tally Prime, a key for every accounting solutions, and we are part of SAP Business One. There are multiple organizational sector which has been managed in SAP Business One. And we are part of Bitrix CRM, a key for every business solution for management of projects, task, deal, report management, etc. And yes, we are part of Skill India. Skill India is a government project which is specifically concerned for the education and employment of children, and it is specifically a government project. Well, these are the different softwares, and this pandemic has gave us an opportunity to focus towards Tally on cloud. Sit anywhere, everywhere, and just focus on your work. There is no distraction in terms of office or in terms of office premises. Data will be entirely backed up, and at the same time you can use it at any place, and hassle free work you can just proceed ahead with. Well, this is all about the softwares. And when I talk about services, yes, we do manage digital marketing services and we are part of HR services as well. So when I specifically talk about digital marketing services in this pandemic, this actually taught us that showcasing our ups and downs of the organization really matters, and that too through the digital media it has really taken a wonderful boom in the market. And showcasing the market that we are actively working was the basic thing of this particular digital marketing. So we support the organization to create the accounts and ensure that they are active in showcasing their products or their services, etc., towards the market. So this is all about the digital marketing services. And at the same time, as I said, we are part of HR services. And when I talk about these softwares, yes, there are a separate HRM module. HR is the backbone of every organization. And yes, again, here it gives a really a wonderful space to check out all the like HR activities and set up the system of the organization, which is based on operations. So this is all about the services and the softwares what we are part of. And yes, we are part of advisory services as well. Advisory services is nothing but we advise the organization to choose the right software, to choose the right process, right system, etc. So, in case if you are interested to set up a system, process, or choose the right software, request you to please do connect us. And to be more specific, if you wanted to upgrade or update from one software to another software according to the number of employees or according to the workflow, request you to please do connect us. We are here just to support you by 24 by 7. So this is all about the organization. To get in detail about the organization, request you to please visit our website www.rajlakshmiworld.com, and for more details you can check out us on the social media as well, on Facebook, Instagram, Twitter, etc. And to be more specific, you can use our YouTube channel as an academy as well, because there are multiple features which has been already explained. And to be more specific, we present webinar based on customers requirement. And again, I would like to specify the most important thing. You can check out all the movements of Raj Lakshmi Solutions in the YouTube and social media channels. I'm specifying this, it is just because there are multiple offers what we are like providing to the markets to support the people in multiple ways. So to know the offer details as well, request you to please connect us on all the social media channels. So this is all about Raj Lakshmi Solutions Private Limited, and we have already forwarded you the details of
the contact details and the YouTube channel link, etc. Request you to please click onto it and ensure that you are part of our family from today onwards. So let's get into the webinar. So as I already specified, topic is inventory management with multiple units of measure. Inventory is always one of the most important part of every organization. Maintaining the details is really very important for the organization to handle the workflow in a smoother way. So yes, today let's see this particular feature of Tally Prime, and here the speakers are ready, I guess. So let us introduce the speakers here. So Miss Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Hi Pinaj, thanks for joining us. So we have one more speaker, that is Mr. Firoz. So Mr. Firoz, are you here? Yes, ma'am. Yes. Hi Firoz, thanks for joining. Thank you, ma'am. Thank you. And we do have a resource person, Mr. Bhagwati, who will be providing us the overview on today's topic. So let's welcome him. Hi, Mr. Bhagwati. Hi, Deepak. Good afternoon, Bhagwati. Yeah. Hi, good evening. Yeah. So, all right. So, we do have all the three speakers. So, what is the agenda of today's webinar? As the introduction part has already been done. So, we will be having a theoretical presentation about today's topic, and we will be having a live demo on the software, and we will be having a overview of today's topic, and then the conclusion along with the question and answer session. So this is all about the plan of today's webinar. So let's get in detail now. So it's completely over to you, Pinaj and Firoz. Hello, good evening all. Myself Pina Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solution Private Limited, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is inventory management with multiple unit of measure. So first we see unit of measure. Stock items are mainly purchased and sold on the basis of quantity. The quantity is turned in measured by units. In such cases, it is necessary to create the unit of measure. Type of measurement unit we can create in Tally are there are two type of unit, simple and compound. स्टॉक आइटम का क्वांटिटी के अनुसार परचेस और सेल किए जाते हैं, बदले में क्वांटिटी को यूनिट से मापा जाता है. यूनिट के दो टाइप हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल यूनिट ऑफ मेजर व्हेन ओनली one unit is used for receipt and issue of stock item, for example liter, kilogram, dozen, etc. जब स्टॉक आइटम रिसिप्ट एंड इशू करते समय सिर्फ एक यूनिट का यूज किया जाता है, उसे हम सिंपल यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीटर, किलोग्राम, एक्सेट्रा. सेकेंड इज कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर. कंपाउंड यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल यूनिट. फॉर एग्जाम्पल डजन ऑफ 12 नॉट. कंपाउंड यूनिट ये दो सिंपल यूनिट का कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल डजन इज इक्वल टू 12 नॉट. Next is alternate unit for stock item. To create stock item with alternate unit of measurement, you have to enable the alternate unit field in stock master creation screen. Using alternate unit, you can record a transaction and view stock summary in basic and alternate unit. Alternate unit are different from compound unit. Alternate unit are individual unit that are similar to simple unit. They can use instead of another simple unit. स्टॉक आइटम में अल्टरनेट यूनिट का यूज करने के लिए स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन में अल्टरनेट यूनिट को इनेबल करना होगा. अल्टरनेट यूनिट का यूज सिंपल यूनिट के बदले किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट क्वांटिटी कोड is a uniform measuring unit used by department for measuring quantity in the return field. Unit quantity code are used to maintain consistency and prevent variations in quantities in the return field by different businesses. Using Tally Prime, you can map your unit of measurement to the
unit quantity code given by the department, file the returns. Unit quantity code जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, GST R1 R2 फाइल करते हैं, तो उस समय पूछा जाता है, वहाँ पर क्वांटिटी कोड दिए हुए हैं जो आप यूनिट क्वांटिटी लिस्ट में देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज number of decimal places. In this field, you can specify the number decimal places for the unit from 0 to 4. This field is useful for a unit measured in fractions. For example, kilogram unit 1 to 55 kgs. Here 1 is for kg and fraction 255 is for gram. For this unit, number of decimal places required is 3. इस फील्ड में आप 0 से 4 तक यूनिट के लिए नंबर डिसिमल प्लेसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किलोग्राम यूनिट 1 to 55 kg, यहाँ 1 kg है और 255 ग्राम है. इस यूनिट के लिए नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस 3 है. नाउ इट्स टाइम फॉर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सो आई रिक्वेस्ट अनिकेत फिरोज सर टू प्रोसीड अहेड. थैंक यू. Very nice presentation, Binaj. Thank you so much. Hello everyone. Myself Feroz Sayyed, presenting live demo session on behalf of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके. सो गाइस, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो सिंपल यूनिट्स है जो हम रेगुलर यूज कर सकते, रेगुलर जो यूज होता है, हम वहां से स्टार्ट कर लेंगे. सबसे पहले हम एक क्रिएट करते हैं हमारा यूनिट. क्रिएट में जाने के बाद में जाना है यूनिट में. यूनिट में हम ले लेंगे नोस जो हमारा नंबर्स में यूज होता है. देन उसका फॉर्मल नेम नंबर्स लेने के बाद में यूक्यूसी सर्च करने इसका नंबर्स. देन डेसिमल 0 लेकर आप सेव कर लेने. हमारा नॉर्मल हो गया जो हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं. अभी यहाँ पर देखिए दो टाइप है, एक कंपाउंड यूनिट और एक सिंपल यूनिट. तो अभी हमने जो क्रिएट करे हैं वो सिंपल यूनिट था. तो फर्स्ट मैं आपको सिंपल यूनिट का बता देता हूँ. हमारा सिंपल यूनिट एक क्रिएट हो चुका है. उसके बाद हमको जाना है वाउचर में. वाउचर में जाएंगे हम. यहाँ पर हमारा पार्टी सेलेक्ट लेंगे. हम एक उसके लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे. जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ लैपटॉप. और यहाँ पर लिस्ट शो हो रहा है यूनिट्स का. जितने भी हम यूनिट्स क्रिएट करेंगे चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो तो सभी के सभी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे. तो इसमें से अभी जो हमने क्रिएट करे हैं नंबर्स का यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो इसको हम सेलेक्ट लेते हैं. देन यहाँ से मैं नॉर्मली सेव कर लेता हूँ. सेव करने के बाद जो हम लोग क्वांटिटी लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ 100 क्वांटिटी. उसका जो भी रेट हमको स्पेसिफाई करना है 500 5000 में ले लेता हूँ पर यूनिट. हमारा हो गया एक सिंपल यूनिट वाला जो हम रेगुलर जो यूज करते हैं. ये एक सिंपल वे का सिंपल यूनिट है. अब इसका प्रिंट भी देख लेंगे हम तो नॉर्मल दिखेगा हमें. ये हमारा सिंपल वाला हो गया. देन उसके बाद में हम देख कंपाउंड यूनिट. मैं इसको सेव कर लेता हूँ. ये हो गया सिंपल यूनिट. देन हम जाएंगे कंपाउंड यूनिट के लिए. उसके लिए जाना है हमें वापस यूनिट में. क्रिएट में जाना है. क्रिएट में जाने के बाद में यूनिट में अभी यहाँ पर एक बैक स्पेस करना है. देन यहाँ पर सिलेक्ट करना है कंपाउंड. अभी कंपाउंड यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से देखा जाएंगे तो. जैसे कि हमारा 2 से ज्यादा यूनिट्स यूज होते हैं ना, उसके लिए हम कंपाउंड यूनिट यूज कर सकते हैं. जैसे कि कोई मटेरियल हम परचेस करें टन में तो उसको हम 2 टाइप में भी सेल कर सकते हैं. एक नॉर्मल हमारा सिंपल यूनिट में भी और डबल यूनिट में भी हम सेल कर सकते हैं. तो सपोज हमने कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं टन में तो हम उसको सेल कर सकते हैं. केजी वाइज भी कर सकते हैं, क्विंटल वाइज भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ये हम कंपाउंड यूनिट यूज होता है. अभी जैसे कि कंपाउंड यूनिट ऊपर सेलेक्ट लेंगे. देन यहाँ पर हमको क्रिएट करना है फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट में हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए बॉक्स. यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है बॉक्स.
देन इसको हम सेव कर लेंगे। और सेकंड हो गया हमारा, सेकेंड यूनिट लेते हैं हम हमारा नंबर्स। अभी यहाँ पर देखिए हमारे 10 नोस का होता है 1 बॉक्स, 10 नोस का 1 बॉक्स होता है, तो हमने यहाँ पर उसका सेटअप लिए नॉर्मल यहाँ से सेटअप करना है कंपाउंड यूनिट का, देन उसको यस कर लेना है। यस करने के बाद अगर ऑर्डर और हमको अगर कंपाउंड यूनिट और क्रिएट करना है तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, यही से है, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम बैक लेते हैं इसको वाउचर लेवल पर, देख इसका इफेक्ट होता है। हम वाउचर में आने के बाद में पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, लेजर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग का, देन हम एक स्टॉक क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक लेने के बाद में यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी यूनिट्स क्रिएटेड है यहाँ पर सभी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी 2 सिंपल यूनिट क्रिएट किए थे, एक बॉक्स हो गया और एक नोस हो गया, ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। और देन यहाँ पर हमने जो कंपाउंड यूनिट क्रिएट करे थे वो इस लेवल पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का एक बॉक्स हमने सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसको मैं नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 1 ले लूंगा, तो जो हमने डिफाइन किया है 1 बॉक्स में आ चुका है। और उसका बेसिक हम जो अमाउंट डालना है हम वो डाल सकते हैं यहाँ पर 100। देन सेकंड में वापस वही ले लेते हैं और उसमें हम डिफाइन करते हैं 10-5 हमारा हो गया ये 10 बॉक्स एंड 5 नोस। अगर हमारे ये 10 बॉक्स और ऊपर हमको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो यहाँ पर 10 डैश और आगे आपको जो भी फॉर एग्जांपल के लिए जो भी डालना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने 10-5 लिया हो एंड एंटर कर लेना है, उसका अमाउंट डाल देना है, देन ये ऑटोमेटिकली पर नोस यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट कर ले रहा है। देन और एक ले लेते हैं हम, हमारे जो बॉक्स है नोस का एक बॉक्स है तो हम 9 ले लेते हैं, यहाँ पर 0.9 लेंगे। 9 लेने के बाद में यहाँ पर उसका अमाउंट डाल देंगे 100 रुपीज। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली वो पर पेन 10 रुपीज से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर 90 रुपीज आ गए। तो ये सिंपल वे में देखने के लिए यूज होता है। अभी देखिए क्लियर वे में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 बॉक्स का अमाउंट भी ऑटोमेटिक ले रहा है, 10.5 का भी ले रहा है, देन 0.9 का भी जो हमने लिए वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर रेट स्पेसिफाई करना है, बस ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम जाएंगे इसका रिपोर्ट लेवल देखने के लिए। उसके लिए हमको जाना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में एंटर करने के बाद में जो हमारा स्टॉक आइटम है वो सेलेक्ट लेना है। जैसे कि हमारा पेन था, पेन सेलेक्ट कर लेते। अभी देख लीजिए यहाँ पर क्या बता रहा है, 12 बॉक्स 4 नंबर्स, यहाँ पर बाइफर्गेशन कर ले रहा है दोनों का सेपरेट सेपरेट। तो ये एक नॉर्मल में हो गया है, जैसे नॉर्मल रिपोर्ट देखने के लिए हो गए विदाउट कंपाउंड वाला। अगर इसको अगर हमको कंपाउंड यूनिट के थ्रू देखना है जो हमने क्रिएट किए हैं, कंपाउंड यूनिट के थ्रू अगर देखना होगा तो उसके लिए यहाँ पर नॉर्मल F12 प्रेस करना है हमको। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है शो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट, इसको हम यस कर लेंगे एंड कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्लियर वे में दिखाई दे रहा है कि हमारे कितने नंबर्स सोल्ड हो चुके हैं। पहले बॉक्स में दिखाई दे रहा था, अभी यहाँ पर नंबर्स में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमको अगर पता जानना है तो उसके लिए हमको बस F12 में से ऑप्शन यस कर लेना है। अगर हम इसको इंटर कर लेंगे, इंटर करने के बाद में यहाँ पर भी आपको क्लियर वे में दिखाई देगा, जैसे कि 12-4 बॉक्सेस, यहाँ पर भी ये इस लेवल पर हमको आउटवर्ड में दिखाई दे रहा है। देन उसका वैल्यू भी वहां पर आ चुका है। तो इस टाइप ये हमारा था कंपाउंड यूनिट। देन इसके बाद में देखते हैं अल्टरनेट यूनिट, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग के पास सपोज कोई हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं बॉक्स में, बट उसको हमको सेल करना होता है नंबर्स में या पीसेस में, या फिर कोई यहाँ पर भी हम फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि कोई हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे टन में या फिर क्विंटल में, तो उसका केजी ग्राम वाइज भी हम अल्टरनेट के थ्रू
डिफाइन कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल वे में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके लिए हम जाते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद पार्टी सेलेक्ट करेंगे, देन हमारा सेल के बाद में हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ राइस ले लेंगे हम। यहाँ पर हम ले लेंगे यूनिट, उसका क्रिएट करते हैं, सिंपल यूनिट क्रिएट करना है हमको एक्चुअली। तो यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर लेंगे हम केजी, किलोग्राम, किलोग्राम्स ले लेंगे। नॉर्मल नेम में भी डाल देंगे हम। देन इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है अल्टरनेट यूनिट। अभी ये अगर ऑप्शन आपको अगर आपके सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसके लिए यहाँ पर F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है यूज अल्टरनेट यूनिट्स, इसको यस कर लेना है एंड सेव कर लेना है। भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारे यूनिट्स पूरे शो हो रहे हैं। तो हमने सपोज लिए है केजी, सेकेंड हमारा अल्टरनेट यूनिट में लेते हैं, ले लेते हैं। टेक्स्ट में आ गया, इसको सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेयर में। अभी देख लीजिए, सपोज हमको 1 पैकेट में हमारा कितना केजी रहता है। अभी यहाँ पर सपोज हम लेते हैं 1 पैकेट, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 पैकेट में हमारा कितना केजी रहेगा। सपोज कोई लेता है 1000 केजी, कोई लेता है 1 केजी, व्हाटएवर। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 केजी। हमारा 1 केजी का होगा 1 पैकेट। अभी आइए इसको देख कैसा होगा हमारे इस लेवल पर। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, नॉर्मल 1 टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 1 केजी हम ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे ब्रैकेट में रिफ्लेक्ट रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अब इसको भी मैं एक सेव लेता हूँ नॉर्मल, उसका अमाउंट डालकर। देन वापिस राइस ले लेंगे, उसका हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि मैं लेता हूँ 10, लेने के बाद में ऑटोमेटिकली उसका पैकेट नीचे डिफाइन कर ले रहे हो। इसका भी अमाउंट डाल देंगे हम, हमको जो डालना रहेगा ऑटोमेटिकली अमाउंट कैलकुलेशन कर लेगा। देन एक और एक स्टॉक ऐड कर लेते हैं हम, एक चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। मैं क्रिएट करता हूँ एक और एक स्टॉक आइटम। ओके, हम लेंगे मोबाइल, एग्जांपल के लिए एक मोबाइल ले लेंगे। मोबाइल लेने के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। नीचे हम ले लेंगे बॉक्स। अभी देख लीजिए 1 बॉक्स में हमारे नंबर्स है, 10 नंबर्स ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल के लिए। मैं 10 नंबर्स का 1 बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। इस टाइप हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नॉर्मली 1। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, बॉक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या डिसाइड किया हुआ है, 10 नंबर्स का 1 बॉक्स होगा। तो अभी हमने 1 नोज दिए तो बॉक्स नहीं आया नीचे। अब इसका अमाउंट डाल के मैं नेक्स्ट वाला लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखते हैं हम नंबर्स डालते हैं, ऑटोमेटिकली नीचे 1 बॉक्स आ गया। तो जो हम वहां पर डिफाइन कर लेंगे, अल्टरनेट यूनिट जो हम डिफाइन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका बाइफॉर्केशन होता रहेगा। अभी इसका भी अमाउंट डाल लेंगे। आपको जो भी लेवल पर देखना है यहाँ पर हम सिंपल वे में देख सकते हैं। अभी इसका हम प्रिंट देख लेंगे। प्रिंट लेवल पर भी आपको सेम एज इट इज ऐसे ही दिखेगा। तो अल्ट पी करने के बाद करंट में जाते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू, यहाँ पर देख लीजिए आपको नीचे क्लियर वे में दिखाई दे रहा है 1 केजी 1 पैकेट, 10 केजी 10 पैकेट्स। यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे में दिख जा रहा है। अगर ये ऑप्शन हमको अगर यस करना होगा तो कॉन्फ़िगर में जाना है, शो मोड में, देन यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट। अभी हम अल्टरनेट यूनिट वाइज देखेंगे, जैसे कि शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम। अगर आपको अल्टरनेट यूनिट सेपरेट कॉलम में देखना है तो ये ऑप्शन को यस कर लेना है। तो इंटर प्रेस करके मैं
सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आपका अल्टरनेट यूनिट भी सेपरेट कॉलम में रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 पैकेट, 10 पैकेट, 0 बॉक्स, ये इस टाइप हम यहाँ से देख सकते हैं एकदम सिंपल वे में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसका भी हम रिपोर्ट देख लेंगे एक बार। और उसके लिए जाना है हमको स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में सेलेक्ट करना है हमको जो हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि मैं ले लेता हूँ राइस। राइस लेने के बाद में यहाँ पर आ रहा है देखिए 10 kg आ रहा है, 550 उसका वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर भी F12 में ऑप्शन है, अगर आपको अल्टरनेट यूनिट वाइज अगर देखना होगा तो यहाँ पर भी सेकंड पर ऑप्शन है शो अल्टरनेट यूनिट्स। अभी मैं इसको यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एकदम क्लियर वे में डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि हमारा क्वांटिटी था 11 kg और उसका पैकेट अल्टरनेट यूनिट भी आ गया यहाँ पर पैकेट वाइज। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल वे में F12 में ऑप्शन यस करने के बाद में दिखाई देगा। आप अगर इंटर करेंगे तो आपको उसका पूरा वाउचर लेवल दिख जाएगा। तो इस टाइप हम अल्टरनेट यूनिट यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट ले लेंगे हम, एक डेसिमल प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जैसे कि हमको कोई हम केजी में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते 1 kg 500 ग्राम्स, तो ये हमको टैली में अभी नहीं दिखेगा जब तक हम डेसिमल प्लेस नहीं बढ़ाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये राइस हो गया हमारा, हमको यहाँ पर लेना है 1 kg 500 ग्राम, ये नहीं लेगा, ये ऑटोमेटिकली 2 kg ले रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, ये राइस को इंटर करना है जो हमने उसका यूनिट लिया हुआ है। एक मैं अलग से स्टॉक आइटम बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर समझ आ जाए। मैं ले लेता हूँ बासमती राइस ले लेता हूँ, इसको सेट कर लेते हैं। देन इसका भी मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ केजी में। इसका नेम चेंज करेंगे क्योंकि सेम नाम डुप्लीकेट क्रिएट नहीं होता है। इसको केजी में ले लेंगे हम, किलोग्राम में। और वहां पर जो इसका डेसिमल प्लेस सपोज हम ले लेते हैं अभी यहाँ पर एक, डिफॉल्ट में रहता है 0। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डेसिमल प्लेस का एक इशू है। आप अगर एक बार डेसिमल प्लेस अगर बढ़ा देंगे ना तो उसको आप माइनस नहीं कर सकते। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए तो एक डेमो डेटा पर ट्राई कीजिए ताकि आपके डेटा को नुकसान ना हो सके। तो इसको हमको हमारे इसके हिसाब से यूज करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेंगी उस लेवल पर ही इसको बढ़ाना है आगे। तो मैं इसको फर्स्ट में यूनिट्स डाल देता हूँ, डेसिमल प्लेस 2 बना देता हूँ। देन इसको यस कर लेंगे, अल्टरनेट यूनिट को नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में भी डालेंगे हम यहाँ पर 1 kg 500 ग्राम। अभी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल प्लेस 2 ही लिए हैं। अभी यहाँ पर 50 ही आ रहा है, हमको चाहिए था एक्चुअली और एक 0 चाहिए था। उसके लिए हमको एक डेसिमल प्लेस और बढ़ाना है। मतलब वहां पर हम जितने लेंगे ना तो उतने ये 1 पॉइंट के आगे उतने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि हमने 2 डेसिमल प्लेस लिए थे तो यहाँ पर 50 ही आ रहे। अगर हम इसको 3 करेंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको वापिस जाता हूँ, अल्टर करता हूँ। अल्टर करने के बाद में केजी को भी अल्टर कर लेंगे। देन यहाँ पर मैं लेता हूँ 3 डेसिमल प्लेस, इसको यस कर लेंगे। इस करने के बाद अभी देख लीजिए ऑटोमेटिकली आपको 1.500 kgs में डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हम ये डेसिमल प्लेस यूज कर सकते हैं। ये था हमारा डेसिमल प्लेसेस का, कि इस टाइप हम डेसिमल प्लेस में हमारा इन्वेंटरी मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Firoz.
All right. So this was all about the inventory management specifically in Tally Prime. So Tally Prime has lots and lots of features which people are not aware, and it is really a broader software wherein you are supposed to explore every feature to avail the right benefit, to save your time, to save the employee cost, etc. So now let's get in detail over recap onto today's topic by Mr. Bhagwati. So Mr. Bhagwati, it's over to you. Thank you, Deepa. So, hi, good evening, everyone. Myself is Bhagwati Chandaria. So, today topic is unit measurement. Unit measurement is a very advanced processes of the any of the inventory management. So, normally trading में एक प्रोडक्ट परचेज किया, सेम प्रोडक्ट को सेल्स कर दिया, तो ऐसा चलता है. एग्जांपल, आपने मोबाइल यूनिट में 1 में परचेज किया, 1 बेच दिया. लेकिन इन टर्म्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द एक्सेप्शन केस, जहां हमारे पास मल्टीपल यूनिट होते हैं. एग्जांपल, जैसा कि फिरोज ने बताया कि एक बॉक्स 10 पीस का भी है, एक बॉक्स 25 पीस का भी है. एक बॉक्स, इसके बारे में 10 बॉक्स का एक कार्टन है, तो ये मल्टीपल यूनिट हो गए. मतलब एक मोबाइल है, एक मोबाइल का पीस में हम बेचते हैं, बॉक्स में बेचते हैं, कार्टन में बेचते हैं. तो ये तीनों यूनिट हमें मेजर करने हैं. और हमारा स्टॉक भी वैसे ही होता है. हम अपने वेयर हाउस से कार्टन खोलते हैं, उसमें से 3 बॉक्स लेके शोरूम में आते हैं, फिर उसमें से एक एक करके हम बेचते हैं. तो हमें स्टॉक 3 लेवल पर चाहिए होता है कि हमारा पोजीशन क्या है, टोटल हमारा पीस में स्टॉक कितना है, बॉक्स में कितना है, कार्टन में कितना है. ये हो गया ट्रेडिंग का प्रोसेस. ट्रेडिंग में इस टाइप से स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है. बट ये इतना मैं बोलूं यूनिक फीचर है टैली में. नॉर्मली पीपल आर नॉट अवेयर. लोग सिंपली उसको यूनिट में पीस में 100 आया, 100 खरीदा, एक एक करके बेच दिया. 10 का बॉक्स बेचा तो 10 पीस बेच दिया. लेकिन वो ये मेजर नहीं कर पाते कि मेरे पास कितने बॉक्स पड़े हैं, मेरे पास कितने कार्टन पड़े हैं, या कितना मेरे पास ओपन इनवॉइस इन मोबाइल पड़ा हुआ है, मतलब 1 पीस वाला नंबर्स ऑफ द पीस. सो वो मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि ये इतना एडवांस फीचर है कि पीपल आर नॉट डिस्कसिंग ऑन इट. मतलब कहीं भी डिस्कशन में भी नहीं आता है और लोग क्वेश्चन भी नहीं करते. सो पिछले कुछ समय में हमारे पास ये टॉपिक्स आया कि वी कैन मैनेज, वी कैन शोकेस दिस टॉपिक्स. सो काफी लोगों को इसका एडवांटेज मिल पाएगा. सो ट्रेडिंग बिजनेस में ये एक सिंपल यूनिट में मल्टीपल मेजरमेंट में मल्टीपल यूनिट में हम लोग यूज कर पाएंगे. लेकिन अब हम आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको भी पता है कि रॉ मटेरियल जो आता है कोई दूसरे टाइप के यूनिट में आता है. एग्जांपल मैं बात करूं कपड़े की, तो कपड़े में केजी में कपड़ा आता है, धागा जो आता है वो केजी में आता है. फिर उसके मल्टीपल प्रोसेस होते हैं. फिर वो उसके बाद में वो बिकता है मीटर में, मीटर, थान, लंप वगैरह वगैरह, डिफरेंट यूनिट में. तो ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ द प्रोसेस होने के बाद में मल्टीपल टाइप ऑफ द यूनिट चेंज होते हैं. एवरी प्रोसेस पर प्रोडक्ट के यूनिट चेंज हो जाते हैं. वो जो यूनिट चेंज होता है उसको भी हम टैली के अंदर में यूज कर पाते हैं इस थ्रू द दिस कंपाउंड यूनिट एंड अल्टरनेट यूनिट के थ्रू, जहां पर आप अपने स्टॉक को प्रॉपर वे में देख पाते हैं. और प्राइसिंग जो होता है इस डिपेंड ऑन अगेन कि आपने प्राइमरी यूनिट अगर केजी लिया तो प्राइसिंग कैलकुलेशन जो होगा केजी पे होगा. प्राइमरी यूनिट आपने अगर पीस लिया है, पीस के ऊपर प्राइमरी यूनिट काम करेगा. तो इस टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ द वेरिएशंस होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ द यूनिट होते हैं सेम प्रोडक्ट के, जहाँ पर ये फीचर काफी यूजफुल होता है. और हम अपने इन्वेंटरी को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में हम देख पाते हैं और उसकी वैल्यूएशन भी हम प्रॉपर कर पाते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और अपने यूनिट को मेजर करना है. और वी आर मेंटेनिंग डिफरेंट वेयर हाउस, एंड वो वेयर हाउस में हमें उसके बेस पे ही हमें स्टॉक मिलना चाहिए कि मेरे पास जो सामने कार्टून दिखाई दे रहा है, मेरे पास अपने सीट में भी, टैली में भी कार्टून नहीं दिखाई देने चाहिए. पीस दिखाई दे रहा है, पीस दिखने चाहिए. अगर मैं प्रोडक्ट को केजी में देखना चाहता हूँ, मैं टन में देखना चाहता हूँ, मैं लीटर में देखना चाहता हूँ, मैं पीस में देखना चाहता हूँ, और मैं मीटर में देखना चाहता हूँ, वेरियस टाइप ऑफ द वेरिएशन जितने भी है, ये वेरिएशंस को भी आप हम लोग मैनेज कर पाते हैं कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट के थ्रू. सो
These are very important of the any of the organization, any of the manufacturing unit, any of the process management. So आई थिंक आप लोगों को ये फीचर काफी यूजफुल होगा। इसके लिए आप कभी भी कोई भी अगर आप अपने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट विद योर अकाउंट मैनेजर जो राजलक्ष्मी सॉल्यूशन से आपके साथ कनेक्टेड है, और इसके एडवांटेज आप ले सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं और इसकी रिपोर्ट्स आप बहुत अच्छे ढंग से पा सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दीपा, इज ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, Mr. Bhagwati. So today's topic was all about cleared by theoretical presentation, live demo on the software, and to be more specific, overview towards the topic. So this is really a wonderful presentation, I could say. But yes, it will for sure be incomplete without a question and answer session. So agar aapko koi questions hai, so request you to please help drop the questions in the comment box, or else you can raise your hand. We will check with the privacy and we will help you to unmute yourself and raise your question here. By the meantime, request Mr. Bhagwati to please check out, is there any questions in the comment box or any raised hands? Sure, Deepa. Yeah. All right, people. So as I already at the introduction part, I have informed you that we are part of multiple softwares and services. So yes, this is the right time. Please do catch us to know multiple offers onto multiple softwares as well as services. By considering the distractions in the market, might be COVID wave, or might be like the great resignation wave, or might be the scenario and situation, we are here to support the market at least to the minimal. So do connect us to, if you really wanted to update your software, upgrade your software, or if you really wanted to explore something else for your process, system, settings, etc. So we are open to support you. So let's catch Mr. Bhagwati. Any questions? No, Deepa, I think there is not any single questions because all right, that's good, no issues. So let me just add on a few things, because we are here at the end of the session. So like as I already said, for any kind of concerns or to set up your organization, to set up your process, do connect us. We are open to give you the advisory services as well here. So apart from this, I would like to tell you this is a free webinar session and this is open to the entire market. But yes, we do have some other training sessions specifically designed for the organizations as well. We design specifically according to the settings, we design a module for the organization for training on certain topics or workflow, etc. अभी हमारे से बहुत सारे लोग they are designing, customizing a training for their organization as well on product and process. So do connect us to get more information about this. And yes, it will be chargeable. We do work on chargeable basis and we do work on free base. We do provide free services as well. So that is the basic of every software. Settings will be free, and to just add on, the advanced level will be charged. So this is the working structure of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Yes, that's it for today. So do connect us if you have any questions or doubts. You can just check out the comment box. The details have been provided. Please take it down and write on us. And yes, thank you so much, Pinaj and Firoz, for adding on your knowledge about the topic and giving us the wonderful presentation and the demo. And thank you, Mr. Bhagwati, for adding on your overview towards the session. So that's it for today. Thank you, everyone, and stay safe, stay confident, and please do drop us your feedback and suggestions on topic as well as on webinar, because we always welcome the improvisation or improving our process and the system by all means. So thank you, everyone. Take care. Bye-bye.